Hello student, in this video I'll solve Capgemini surrogate question and real exam question, not any random question. This is first question. Let's start from the first question. And this question related to the recursion. So they have given the value a equal to 3. First, it will call the function for a equal to 3. The condition 3 less than 1. Condition is false. तो कहाँ पे जाएगा else block में print a. तो 3 यहाँ पे print कर दिया. Now it will call the same function again. That is called recursion. So I am giving just 1 minute. Okay. Calling the same function again and the value a minus 2, 3 minus 2 that is 1. Okay. Now 1 less than 1 condition false. The else block में आएगा print a means 1. So 1 print कर दिया 3 then 1 print हुआ. Then it will again call for which value? It will call for a minus 2. A का value 1 है तो 1 मतलब minus 2 1 minus 2 that is minus 1. अब minus 1 के लिए कॉल है a के वैल्यू. ओके. नाउ minus 1 लेस देन 1 कंडीशन ट्रू है. यस ट्रू तो रिटर्न होके जाएगा. कहां पे रिटर्न होके यहाँ पे. ना प्रिंट ए का वैल्यू कितना है 1 तो 1 प्रिंट हो गया. नाउ प्रिंट ए प्रिंट हुआ फिर रिटर्न रिटर्न कहां पे होगा जहां पे कॉल हुआ था. कहां से फंक्शन a माइनस 2 दैट इज वैल्यू a 3. तो प्रिंट a मींस c तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा. तो आंसर शुड बी 3113. तो फर्स्ट क्वेश्चन. इसका पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ रिगार्डिंग सुडो कोड प्लस कैप्जेमिनी कोडिंग क्वेश्चन. Check the description, you'll get the playlist link and solve all the question. Moving to the next one. बहुत इजी है क्वेश्चन. पहले देखो a का वैल्यू 1 है b का वैल्यू 2 है i का वैल्यू 0 से 6 तक एंड 2 करके इंक्रीज होगा. तो पहले i 0 होगा फिर 2 फिर 4 देन 6. ओके. ना a बिकम a प्लस b प्लस i. तो a का वैल्यू एडेड करो. a का वैल्यू पहले कितना है पहले 0 का लिए चेक करो. a becomes a means 1 plus b 2 1 plus 2 3 plus 0 plus 0 that is 3 and b. If you shoot both this line first a equal to a plus b तो a का वैल्यू कितना होगा फिर से 3 plus 2 a becomes 5. तो a तो 5 हो जाएगा एंड b का वैल्यू पहले कितना है 2 एंड b का वैल्यू a minus b 5 से minus 2 करो कितना होगा 3 और यू कैन से a का वैल्यू b ही होगा. No, sorry, b का वैल्यू a ही होगा. Now a for 2 if you added a plus b 3 plus 5 that is 8 8 plus 2 that is 10 and print b also 3 पहले 3 print हुआ. Now a becomes 10 and now a plus b 3 plus 10 so a become 13. Now b become a 13 minus 3 that is 10. So print 10. It will print 10. So answer should be 3 10 2 option. Now again I equal to 4 added 13 plus 4 23 and then added 4 27. 27 added b again 27 plus 10 that is 37 and 37 से a से b माइनस को 37 से 10 माइनस का तो कितना होगा 27. so it will print 27. Now I equal to 6 added 37 plus 27 plus 6 that is 70. Got it. First this block it will add it. Now a equal to a plus b 70 plus 27 that is 97. Now a minus b 97 minus b 27 that will be 70. Now print b तो b का वैल्यू 70 प्रिंट हो गया. तो आंसर लास्ट वन बी. और किसी का कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में पूछ लेना. मूविंग टू नेक्स्ट वन. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. a का वैल्यू 2 है b का वैल्यू 3 है रिजल्ट 1 है जब तक b नॉट इक्वल टू 0 b पहले 3 होगा फिर 2 होगा फिर 1 होगा देन 0 0 में कंडीशन फॉल्स एंड 3 टाइम्स आई नीड टू मल्टीप्लाई रिजल्ट विथ a वैल्यू 2. तो यू कैन से 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना मतलब 2 into 2 into 2 that is 8. So 8 greater than 5 yes condition true. So a will become a minus 1 2 minus 1 that is 1. So a become 1 and result become 8 8 1 your answer. That is option A. Next question. Given p equal to 4 q equal to 7 and r equal to 10. Now p
क्यू मॉड आर, क्यू मतलब 7, अगर 7 को 10 से डिविजल करोगे तो रिमाइंडर 7 ही रहेगा, 7। एंड पी, दैट इज पी, पी मींस 7, एंड क्यू, क्यू 7, 7 प्लस 14। ना आर, आर प्लस क्यू, आर 10 एंड क्यू 14, 24। तो पी क्यू आर का वैल्यू कितना है, 7, 14, 24। ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन। और किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में। G greater than F, 9 greater than 6, condition true. So it will added F, F means 6. Then it will plus 1 and till the G. मतलब 6, then 7, then 8. 9 के लिए false होगा, 9 less than 9, that is false. So added 6 plus 10 plus 8, that is 21. Answer 21. Moving to the next one. Now, m equal to 0, n equal to 13, and m becomes n by 2. 13 by 2, that is 6.5. But integer value, it will take 6. And it will check I 2 से लेके m तक, मतलब 2, 3, 4, 5, 6. कोई भी वैल्यू डिविजन करेगा 13 को, नहीं करेगा, तो फ्लैग becomes 0, not 1. So flag 0 means print n. तो n का वैल्यू 13, तो it should be print 13. और ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक चेक करते हैं प्राइम नंबर, एक्चुअली प्राइम नंबर और नॉट। मूविंग टू नेक्स्ट वन। तो ये तो पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिया था, कैन यू ट्राई योरसेल्फ। पहले वीडियो मैंने सॉल्व किया था, ट्राई योरसेल्फ एंड राइट द कमेंट आंसर, राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और किसी का कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। और मैं तो बहुत सारे वीडियो रिगार्डिंग कैप्शन अपलोड किया हूँ, तो देख लेना सारे वीडियो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका आंसर कमेंट में लिखो क्या है इसका आंसर। मैंने तो पिछले वीडियो में सॉल्व किया, तो फिर से सॉल्व नहीं करूंगा। देखो, ये भी बहुत इजी है। Given a equal to 125, b equal to 122. If this one odded, if we added odded plus even, it will give odded number. That odded number से अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर should be 1. तो 1 not equal to 0, yes. Condition true. A greater than 0, 125 greater than 0, yes. B become a plus b. A means 120, 122, then added a. That is 125. If we added 7, 4, 2. Now a becomes a by 5. So if we divide, it will become 25. Now 25 greater than 0, yes, condition true. It will added the 25 in the b, added 2, 7, 2. Now 25 by 5, it will become 5. 5 greater than 0, yes, condition true. Again added in the b. It will 277. Now 5 by 5, 5 by 5, that is 1. Now 1 greater than 0, yes, condition true. Now added 1 into the b, so it will become 278. Now 1 by 5, that is 0.2. अब जो 0.2 मीन 0, 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स। पिन बी, बी का वैल्यू कितना है, 278। तो आंसर 278। नेक्स्ट वन। x इक्वल टू y इक्वल टू 8, z इक्वल टू 3, k इक्वल टू 1। y का वैल्यू कितना है, 3, एंड z प्लस k, 3 प्लस 1 4, 4 लेस देन 8। हाँ, कंडीशन ट्रू है। अब देखो z mod 2, z मतलब कौन सा, इवन नंबर, ऑडेड नंबर, सॉरी ऑडेड नंबर का 2 से डिवाइड करोगे तो इट शुड बी 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। फिर बिकम y प्लस z, y प्लस z, दैट इज 11। ओके, नाउ एडेड y, दिस वन अंडर द इफ। ओके, now y प्लस z प्लस k प्लस 3, y का वैल्यू कितना है, 8, प्लस z का वैल्यू 3, k का वैल्यू 1, एंड c का वैल्यू 11। इफ वी एडेड ऑल दिस वैल्यू, इट इज 23। तो प्रिंट y, तो y का वैल्यू कितना है, 23। नेक्स्ट वन। Can you try? This is same question. अच्छा, same question, 3113, फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करना कोई जरूरत नहीं। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। और कोई इसका सॉल्यूशन पता है और कर सकते हो, ट्राई करो, क्योंकि मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लगे सॉल्यूशन। पहले इसको कॉल किया इफ कंडीशन, फिर रिटर्न वाला कंडीशन, और ए वाला ट्रू होगा तो लेट्स चेक इट वन टाइम, गिव इट ट्राई। ओके, लास्ट में ए वाला कॉल तो होगा ही होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है। और इफ यू चेक p प्लस क्यू की बाई 2, चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। रिकर्सन का क्वेश्चन है।
p का वैल्यू, तो ए वाला जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट अंडर द फंक्शन कॉल, तो ए वाला q नॉट इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू 0 और ए कंडीशन ट्रू नहीं, ये तो हमेशा रन ही होगा ये वाला पार्ट। तो इस क्वेश्चन का छोड़ो, ठीक है, थोड़ा आई कैन ट्राई योरसेल्फ एंड राइट द आंसर इन द कमेंट। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जे सो j प्लस 1 41 प्लस 1 42, k माइनस 1 36। अब j मतलब 42 by 36, so it will become 1, and k by j, k means 36 and by 1, so it will become 36। now k का वैल्यू पिन करो, that is 36, and j का वैल्यू पिन करो, that is 1, so 36 1 your answer। moving to the next one। now p equal to 4, k equal to 7, that's already solved this question, the same repeated question। now what is the output of the following program? I 0 से लेकर 4 तक इंक्रीमेंट बाई 1, एक एक कर इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इफ i का इक्वल टू 3, देखो ये इंक्रीमेंट बाई 1, पहले i का वैल्यू 0 होगा, देन 1, देन 2, देन 3। इट विल प्रिंट ओनली व्हेन i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 3 होगा तो हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। तो i इंक्रीमेंट बाई 1, पहले 0 होगा तो a का वैल्यू कितना होगा 1, फिर 1 होगा, a का वैल्यू कितना 2, फिर i का वैल्यू 2 होगा तो a का वैल्यू 3, i का वैल्यू जैसे 3 होगा a बिकम 4, एंड i का वैल्यू 3 होगा तो प्रिंट हेलो, एंड आउट ऑफ द फॉर लूप इट विल प्रिंट 4, तो प्रिंट हेलो 4, ऑप्शन ए। Going to the next one, this one too easy question, you just need to add it 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3 plus 4 into 4 and plus 5 into 5, write your answer in the comment, that is 55, you can write answer in the comment। It is multiply, you can add it like 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25, 25 25, yes 55। Going to the next one, a equal to 3, b equal to 13, okay, a plus c, 3 plus 14 17 greater than 13 plus 7, condition false na, 13 plus 7 that is 20, condition false, so it will check else block। ना जे बी टू सी, बी मीन्स कितना है 13 से 14, पहले 13 होगा फिर 14 प्लस 1, ए पे जे एडेड होगा एंड डी एडेड, ए मीन्स कितना है 3, 3 प्लस जे का वैल्यू पहले 13 एंड देन डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना है 7, so that is 23। now for the 14 it will added 23 plus j, that is 14 plus d, again d 7, if you added 23 that is 30 plus 40, that is 44, answer should be 44, pin T। Moving to the next one, that is pointer concept। now asterisk a asterisk b, okay, I a num means a point to the first value, b equal to num plus 2, so 1 2, b here, got it। asterisk a plus plus, पहले बात देखो asterisk ऑपरेटर है, फिर a plus plus, post increment first it will give the value then it will increment, here a plus plus not plus plus a, so a plus plus means first it will assign the value, assign address of this value, and asterisk operator, this one it will take address, I'm taking this one address like 100, so it will give asterisk 100, then a value increase by here a, and asterisk operator take address and give value, value equal to 1, so I become 1, a point 4 b point 8, so 1 4 8 your answer। Moving to the next one, ये तो अभी किया ना ये वाला क्वेश्चन, हेलो फोर ए इक्वल टू हेलो फोर, अभी किया सेम क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन m equal to 3, n equal to 2, o equal to 4, okay, n greater than 0, yes 2 greater than 0 condition is true। now m into o means 4, m equal to 3 into 4 plus n means 2, so 3 into 4 plus 2 it will be 14। now n become 2 से लेके अब 1 हो गया, now 1 greater than 0 condition true, m into 0, m means 14 into 4,
So 14 into 4. No answer matching. Just 1 minute. It is m into 0 plus n. हाँ, कोई भी आंसर तो होने ही होगा ना, इसमें से आंसर ही गलत है पूरा की पूरा। 14 प्लस 4 प्लस n, n का वैल्यू 1 है, तो 57। तो m बिकम 57, n नाउ बिकम 0। तो n तो 0 होगा, इसका n का वैल्यू 0 होना चाहिए। ओके, एंड o का वैल्यू o प्लस m, 57 प्लस 64 दैट इज 61। तो ये तो 61 होना चाहिए, एंड m का वैल्यू 57। तो नॉन ऑफ दिस आंसर, आंसर ही सही नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड नहीं है। तो कोई भी आंसर सही नहीं है, गलत आंसर दिया है ना। सी कोड दिया है कैल्कुलेशन ने 926। पहले x एंड y करो, फिर और ऑपरेटर करना। पहले एंड करो लेफ्ट से राइट। x का वैल्यू 9, तुम देखो हर वैल्यू नॉन जीरो, इफ यू नो नॉन जीरो वैल्यू ऑलवेज गिव 0। अच्छा, बीट वाइज ऑपरेटर करना है पहले बात। यस यस, एंड एक्चुअली बीट वाइज ऑपरेटर। तो 9 and 2 करो, 9 means 1 0 0 1, 2 means 1 0 0 0, if you do 0 0 0 0, if you do 6 1 1 0, if you do OR operator or, so it is 0 1 1 0, that is 6, so your answer should be 6। moving to the next one question। देखो नाम का वैल्यू 10 दिया है, ठीक है। आई जे एंड नाम, एंटर वैल्यू, तो वैल्यू कितना एंटर किया 10। आई 1 से लेकर 10 तक जाएगा, ठीक है, 1 से लेके 10, 1 2 3 एंड 10 वैल्यू। डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल सब, सब इक्वल टू 0, पहले बार 0 हो गया, ठीक है 0। स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंड सब प्लस आई, तो पहले 1 एडेड करोगे, फिर 2 एडेड होगा, फिर 3 एडेड होगा, तो ऐसे एडेड होते जाएगा। तो प्लस 10 तक एडेड करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड डॉट डॉट प्लस 10। तो फिर एडेड ऑल द नंबर, इट विल बिकम 55। तो तुम्हारा जे में 55 आंसर आएगा, 20 55, तो इट विल बिकम 55। क्यों? देखो स्टैटिक वेरिएबल अगर तुमने जैसे सब इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया, तो पहले 0, फिर आई एडेड होगा, तो इट विल बिकम 1, एंड जे इट विल अपडेट 1, जे में तो 1 अपडेट होगा। जब आई का जो 2 रन होगा, तो फिर से 7, जो वैल्यू 0 से स्टार्ट में होगा, जो पहले 1 हुआ ना उससे स्टार्ट होगा, तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 करके तो 3, तो जे इक्वल टू 3, देन 3 प्लस 4, 3 plus 3, then plus 4, and so on. So it will, if you added 1 to 10, the number 55. The answer should be 55. So next question, the same repeated question. Next one also repeated question. This question not repeated. 3 plus 2, ये भी repeated है क्या? Like 3 plus 2, 5 less than 7, 5 less than 7, yes, condition 2. Now a becomes a into 0, so 0 plus b, a becomes 2. So a means 2 and b plus 1, 2 plus 1, that is 3, 2, 3 answer. Moving to the next one. अच्छा, ये तो पिछले वीडियो में कर दिया था क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो राइट योर आंसर इन द कमेंट, जस्ट रिवर्स दिस वन, रिवर्स दिस, दिस लॉजिक एक्चुअली रिवर्स ऑफ ए नंबर, पिन रिवर्स 5 4 7 6 आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन भी पिछले वीडियो में कर दिया था, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। पिछले वीडियो मतलब दिस वीडियो, आई हैव चेक दिस वीडियो, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व। दिस क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व इन दिस वीडियो 8-1, same repeated question they are asking actually. This one. Now you have given 1 2 3 4. As I mentioned, if you declare static variable one time, if you call the same function again it will not initialize from the beginning. फिर से initialize नहीं करेगा, जहां से अपडेट हुआ उसी को पकड़ेगा। Like first it will call, I need to check out, इसको कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3, okay, it will be better। ए का वैल्यू, ए का नहीं, नाम का वैल्यू कितना है, 1 2 3 के लिए कॉल किया। अब देखो ए का नाम ग्रेटर देन 0, 123 ग्रेटर देन 0, yes, condition तो ट्रू है, तो a becomes 1।
ना ए के ए बिकम्स 1 नाउ फन अगेन कॉल होगा सेम फंक्शन को और अगेन सेम फंक्शन कॉल हुआ एंड कौन सा वैल्यू के लिए नाम बाय 10 123 बाय 10 दैट्स मीन 12.3 बट इंटीजर वैल्यू 12 इट विल कॉल फॉर 12 नाउ सेट इक्वल टू 0 नॉट अब ए का वैल्यू 1 होगा 0 नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है अगर फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे तो जो लास्ट वैल्यू अपडेट हुआ उसी वैल्यू से कॉल होगा ठीक है अच्छा तो उसी वैल्यू से कॉल होगा तो ए बिकम्स ना ए का वैल्यू कौन सा 1 इफ यू चेक ए 1 1 कॉल होगा तो फिर से 12 के लिए कॉल है 12 वाईफाई चला गया तो नाम ग्रेटर देन 12 यस कंडीशन 2 तो ए बिकम्स +2 1 +2 देन इट विल कॉल फॉर द 1 तो 1 के लिए भी इंक्रीज होगा 1 ग्रेटर देन 0 तो इट विल बिकम 3 ना 1 डिवाइड बाय 10 फिर से अगर कॉल करें तो 0 हो जाएगा तो ये रिटर्न करेगा तो ये मतलब 3 वैल्यू रिटर्न होगा तो आंसर शुड बी 3 और इट इज काउंट नंबर ऑफ डिजिट कितना डिजिट है रिकर्शन यूजिंग रिकर्शन ना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कोई बात नहीं 85 count 0 नाम so this one left shift operator I have already explained left shift operator if you have left shift a left shift b your answer should be a into 2 for b so num is 85 into 2 for b means 1 so 285 into 2 170 so x become 170 now x dot नाम x का वैल्यू कितना है 170 and 85 तो 170 का बाइनरी कितना होता है binary of 170 if you check 170 binary 128 just I need to check बहुत बड़ा नंबर दे दिया मुझे जोड़ करना है just 1 minute 170 binary 170 का बाइनरी थे 1010 1010 ये तो थोड़ा ओके 8 एंड नाम दैट इज 85 85 का बाइनरी चेक करो दैट इज 7 digits 1010 and 101 85 का बाइनरी if you do XOR operator it will become 0 it is 1 1 1 1 1 1 1 1 कितना होना है 2 4 8 60 32 64 128 and then 120 के बाद क्या होता है 256 so if you added all this number it will become 511 you can add it all this number 256 128 it should be just a minute 1 2 it should be not no no 1 2 होगा फिर 4 होगा so if you added all this number it will become if you convert it is 255 the number actually so y become 255 now if you add it it will become 256 y by 2 not equal to 0 it is should be remainder not 2 y अगर 2 से डिवाइड करोगे 256 this one actually divide operator 250 by 2 condition actually while अच्छा जब तक अच्छा 256 by 2 not equal to 0 yes condition true now y mod 2 not equal to 0 false if it is one odded number it will become y by 2 अच्छा in this logic if you check here actually y becomes 0 until y by 2 equal to 0 ठीक है फिर y कितना होगा 256 से 128 then कितना होगा 64 then 32 then कितना होगा 16 16 is still it is not equal to 0 and then if you like 2 अब देखो y के वैल्यू 2 हो गया 2 by 2 not equal to 0 yes now y mod 2 not equal to 0 condition false now y become 2 2 by 2 that is 1 now if you check 1 by 2 not equal to 0 तो 1 by 2 करेंगे तो कितना वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग तो कंडीशन फॉल्स तो जब y के वैल्यू 1 होगा तब कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि 1 by 2 that is 0.5 so it will take 0 as a integer value 0 not equal to 0 कंडीशन फॉल्स तो y के वैल्यू जब 1 है तभी कंडीशन फॉल्स हुआ है नाउ काउंट कभी अपडेट हुआ है कभी अपडेट ही नहीं हुआ है तो इट विल प्रिंट एल्स ब्लॉक 1 एंड x का वैल्यू कितना था 170 so it will print 1
एंड 170 x का वैल्यू। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, देख लेना ना। y इक्वल टू 5, ओके ना। y प्लस y अब 10 असाइन हो गया है, 10, दिस वैल्यू y बिकम 10 and this will should be update y value also, it is become 10 plus 10, so that is 20। पहले इस वैल्यू इसको असाइन होगा y की वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 आएगा। अब y का वैल्यू 5 नहीं है, 10 है, तो 10 plus 10 that is 20, तो फिर z become 20। Going to the next question, and this one last for this video. If you need part 3 or more video solving of this 309 pdf page, comment, मैं और भी वीडियो बना दूंगा। will be the lower bound are be the upper bound of a linear array, initialize set के lower bound b, repeat till upper bound, you are traversing array। देखो एक वैल्यू जैसे लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड तक तुम जा रहे हो एंड एरे का वैल्यू पिन कर रहे हो, दैट इज ट्रैवर्सिंग एरे। मतलब एरे का जो एलिमेंट है ना, लाइक एरे 1 2 3 4 5, यू आर इंडेक्सिंग 0 1 2 3 3 4, ये 2 से लेके 4 तक पिन करो, मतलब ट्रैवर्सिंग एरे, दैट इज योर आंसर। अभी तक किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना एंड डू सब्सक्राइब मस्ट। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट